Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, Ishika. How are you all? I'm fine. What Okay. about you? Good, good, good. All well in family? Yes, ma'am. Now all are well. So, was there any problem? Yes, ma'am. COVID again? Yes, ma'am. Ma'am, but now it is all okay. Okay, that's good. Yes, ma'am. Good. Gaurav has also joined. Let others also come. Good morning, ma'am. Good morning, Gaurav Beta. Yesterday we were doing civics. So today, though it is geography, shall we continue with the civics chapter only? Yes, ma'am. Huh. I think only the last topic was left. Morning, ma'am. Good morning, Lavlesh. How are you, Beta? Ma'am, I'm fine. Good? Yes, ma'am. Fine. Ma'am, which page number we are going on? Beta, yesterday we started, just a second, let me take these people in. Yesterday we Good were morning, doing- ma'am. Good morning, Beta Sachin. Let me share the screen with you first.
I just hope that you all have the books with you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am, I don't have. अरे बेटा, मैम मैं घर पे नहीं हूँ मैम, इसीलिए नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, तो घर कब लौटेंगे आप? मैम शायद इसी हफ्ते में। ओके, सब ठीक ठाक है बेटा? यस मैम। चलिए, we were on the flow chart basis of social differences we were discussing. हमने जेंडर पढ़ लिया था, हमने रिलीजन पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक हमारा सेक्युलरिज्म था, आई थिंक वो भी हमने कवर अप कर लिया था, राइट क्लास? Yes, ma'am. नाउ कमिंग टू Yes, द ma'am. कास्ट, नाउ कमिंग टू द कास्ट। See, when we talk of the caste, we all know that our country, our society is a caste-ridden society, right? Yes, ma'am. Good morning, Abhyuday. Yes, ma'am. It is a caste-ridden society, and people in our country, they are more into caste and religion than anything else, right? Yes, गुड ma'am. मॉर्निंग मैम। बेटा हमारा लास्ट टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ था, वी वर ऑन सेक्युलरिज्म। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक you to note. The first point, shall we start with the class? I hope all have joined. Yes, Yes, ma'am. Yes. Fine. यस मैम। See, talking about secular state, we all know that there are various constitutional provisions in our country regarding the secularism part. First of all, it is in context with the religion. I am telling you, there is no official religion in our country. For Indian state, or when we say India as a country, we don't follow any particular religion. Rather, we have given complete independence or freedom to our people to follow, practice any religion, right? Then all the individuals and the communities that we have, they are free to profess, practice, propagate any religion, or whether they want to follow any religion or they don't want to follow any religion. There is no hard and fast rule that everyone has to follow a religion. There are people, those who don't want to believe in the religious practices, they are free to do so. There is no foundation by law that they have to follow any particular religion, right? Then Yes, ma'am. यस मैम। as per the constitutional norm that we say that there is prohibition of discrimination on grounds of religion, right? Yes, ma'am. Then we also know this, that the Indian Constitution allows the states to intervene in the matters of religions so as to ensure equality within the religious communities. अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एकदम आंख बंद करके बैठ जाता है when it comes on ensuring equality. ठीक है? Yes, ma'am. अगर किसी भी स्टेट में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हो रहा है ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, तो इस चीज के लिए ऑफ कोर्स द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू इट. हम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म का नाम लेके हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. इंटरफेयर हम इस सेंस में कर सकते हैं कि अगर इक्वालिटी का स्टेटस नहीं हम देते हैं, या अगर हम डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हैं विद डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, देन ऑफ कोर्स द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन इन इट. ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, अब हम आ जाते हैं कास्ट. कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, आपको पता है ये बात?
कास्ट इनइक्वालिटीज क्या हैं आपको पता है क्लास? चिल्ड्रन, Yes, ma'am. what is Yes, caste? ma'am. What when we say caste inequalities, what exactly we are meaning by this? What do we mean by this caste inequality? हाँ बताइए. Different caste have given ma'am reservations, ma'am. In areas, ma'am. हम कास्ट में असमानता की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं. व्हाट इज दिस कास्ट इनइक्वालिटी? देखो बेटा, वैसे तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करते हैं तो कास्ट इनइक्वालिटीज हमारे कंट्री में अब तक खत्म हो जानी चाहिए ना. Yes, ma'am. बट ऐसा नहीं है. हमारे कंट्री में आज भी अनटचेबिलिटी जो है वो कंप्लीटली रिमूव Yes, ma'am. Like ma'am, untouchability. इवन, हाँ, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन. हम एज पर लॉ कहते हैं कि प्रोहिबिट है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना, पर आज भी अगर आप देखो प्रैक्टिकली आज भी ये सारी चीजें प्रिविलेंट हैं. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों के दिलो दिमाग से हम इन चीजों को नहीं निकाल पाए हैं. ठीक है. दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे अगर हम आज की डेट में देखें तो आज भी जो है आउटकास्ट जो मैरिजेस होती हैं उनको इजीली एक्सेप्ट नहीं करा जाता है सोसाइटी में. देखो ज्यादातर लोग जो है अपनी ही कास्ट में जो है शादी करवाना पसंद करते हैं. इट इज अ प्रूवन Yes, फैक्ट. ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होती भी हैं तो वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं टू द पीपल इन द सोसाइटी. राइट? Yes, ma'am. ठीक है. आपने गांव देहात में बहुत केसेस देखे होंगे. क्राइम पेट्रोल एक प्रोग्राम आता है जो बहुत फेमस है. उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें कि इंटरकास्ट मैरिजेस की वजह से लड़के वालों और लड़की वालों ने जो है एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए और अल्टीमेटली उन लोगों को ढूंढ ढांड के जहाँ पे भी वो जो है अपने आप को जहाँ पे भी उन्होंने एस्टेब्लिश करा वहां पहुंच के उन लोगों को मार दिया गया या उनको अलग कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि भाई एक सेम कास्ट के नहीं थे, अपर कास्ट लोअर कास्ट का हिसाब किताब था. इस वजह से ये चीज आज भी हमारे कंट्री में बहुत कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है. इंटरकास्ट मैरिजेस आर नॉट इजीली एक्सेप्टेबल. प्लस इंटरकास्ट मैरिजेस को बहुत ज्यादा जो है प्रोवोक भी नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट भी नहीं किया जाता है. ठीक है. इंटरकास्ट मैरिजेस बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी जाती हैं. विद इन द कास्ट ओनली लोग अपनी बच्चों की शादी करवाना प्रेफर करते हैं. ठीक है. Then all the societies have Yes, some ma'am. kind of social inequalities and some form of division of labor in most of the society. Occupations are passed from one generation to another, so the caste system becomes very extreme. हमने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि हमारे कंट्री में विद इन द कास्ट भी जो है जैसे अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो विद इन कास्ट भी जो है बहुत सेग्रीगेशन है. ठीक है. और उस सेग्रीगेशन के अंडर जो है लोग बहुत ज्यादा जो है इतना ज्यादा उसके अंदर मतलब रूढ़िवादी हैं, इतना ज्यादा कट्टर हैं उन चीजों को फॉलो करने के लिए कि वो अपनी उन कास्ट ग्रुप के सब ग्रुप्स में से निकलना नहीं मांगते. ठीक है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्वालिटी समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. दूसरा, जब हम बात करते हैं आपकी सोशल डिस्क्रिमिनेशन की, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमारे कंट्री में अभी भी बहुत ज्यादा हम फॉलो करते हैं. कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन दैट वी आर फॉलोइंग? हाँ क्लास, What? सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हम अपनी कंट्री में फॉलो करते हैं, कैन यू टेल अबाउट दैट? बताओ बेटा. बेटा सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हम अपनी कंट्री में Ma'am, like ma'am, people are discriminated on the basis of ma'am caste and religion. ठीक है. और बताओ. And ma'am, gender-based social discrimination is also there. हाँ.
कह रहा जब हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जब जहाँ पे कास्ट इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन अपने आप आ जाता है। ठीक है, ये चीज तो बहुत हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे कंट्री में, क्योंकि किसी समय में कास्ट रिडन सोसाइटी हुआ करती थी, दो आज की डेट में हम अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं, हम अपने आप को ये कहते हैं कि वी हैव ओवरकम सेवरल ऑब्स्टिकल्स, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। अगर आप देखो तो आज भी कहीं ना कहीं इंसान की जो मानसिकता है, जो उनका जो दिमाग में इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, राइट क्लास? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पर अगर आप आज के समय में देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी बहुत ज्यादा है, बट अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये चीज देखें तो अवेयरनेस, एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। तो ये जो हमारा जो कास्ट सिस्टम है इसके अंदर चेंजेस भी बहुत आए हैं। अब वो कैसे आए हैं चेंजेस? भाई हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके एफर्ट्स थे। अगर आप एग्जाम्पल उठा के देखो, महात्मा गांधी, दो ही वॉज अ लीडर, बट उन्होंने हमेशा जो है इक्वालिटी को जो है प्रैक्टिस करने के लिए कहा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे जो है डिवीजन होता है और डिसयूनिटी जो है वो होती है। अगर हमें यूनाइटेड रहना है, अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें डेवलप करना है, तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को पीछे छोड़ के उससे आगे निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर आप देखो तो जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं कास्ट सिस्टम में, जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई एक हायरार्की को हम फॉलो करते थे कि भाई नाई का बच्चा नाई बनता था, किसान का बेटा किसान बनता था, जो मोची होता था उसका बच्चा मोची बनता था, या जो डॉक्टर है उसका बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, जो इंजीनियर है उसका बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, है ना, या जो टीचर है उसका बच्चा टीचर ही बनेगा। तो ये सब चीजें पहले जो थी ऑक्यूपेशन बेस्ड हमारी सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन था, डिवीजन था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इन चीजों पहले बीच में एक एरा ऐसा आया, एक टाइम पीरियड ऐसा आया जब पीपल वर दे वर स्टिक टू दीज नॉर्म्स। बट आज के टाइम में अगर आप देखो तो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द नॉलेज पार्ट जो कि इतना ज्यादा इजीली स्प्रेड अप हो गया है अमंग द पीपल, तो इसकी वजह से ये जो सोशल ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, या ये जॉब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला जो हिसाब किताब है, उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। मोबिलाइजेशन हो गया है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में मोबिलाइजेशन आ गया है। मतलब आप इजीली कोई भी एक जॉब से जो है एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में इजीली स्विच कर सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. जैसे अगर आप Yes, देखो Yes, ma'am. ma'am. किसान का बेटा जरूरी नहीं है कि किसान ही बनेगा, या कुम्हार जो जो लोग गमले बनाते हैं, जो पॉट्स बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी वही काम करे। देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स जहाँ पे जिन जो जो लोग बहुत ही उस छोटे तरीके के काम करते थे, जैसे कह लो, या जो इस तरीके के उसमें इन्वॉल्व थे कि भाई जो पॉट्स बना रहे हैं, पॉटरी में है, या कोई जो है आपका शू मेकिंग में है, तो आज की डेट में दीज पीपल लाइक इनकी जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन जो है, उन्होंने जो है इस मिथ को जो है तोड़ दिया है कि भाई मोची का बेटा मोची बनेगा या बार्बर का बेटा मार्बर ही बनेगा। इन लोगों ने इस मिथ को तोड़ के दे हैव गॉन टू डिफरेंट व्हाट डू यू कॉल फील्ड्स। ठीक है, आज की डेट में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है किसी और उसमें काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो अपने फादर के ही शू में स्टेप करके जो है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब अगर हम आते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया, सो दैट इनका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो हमारे पार्लियामेंट्री सीट्स में, या जो हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, जब इलेक्शन के टाइम पे जो हम सीट्स देते हैं, उनमें इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। उसको कैसे इंश्योर किया गया? बाय गिविंग देम, बाय प्रोवाइडिंग देम सीट्स इन दी रिजर्वेशन इन दी constitution in the representation.
अगर आप याद करो हमने क्लास 9 में पढ़ा था ना कि जो है आपका रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ करा था कि भाई ताकि जो ये वीकर सेक्शन है Yes, ma'am. इनका भी एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि इनको भी लगे कि भाई हमारे लिए भी कोई लड़ने वाला है, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन बनाया गया जिसमें कि रिजर्वेशन दिया गया फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स की, तो ये जो कास्ट इन पॉलिटिक्स है ये तो बहुत खराब तरीके से कास्ट को अगर हम पॉलिटिक्स में पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना? Yes, अच्छी- ma'am. Yes, ma'am. अगर हम कास्ट को पॉलिटिक्स में हम व्यू करते हैं तो उसमें जो है हमारा जो पॉलिटिक्स अगर आप देखो उसमें बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स कोई भी इंसान इन लोगों को भूलता नहीं है। कास्ट को हमेशा हाईलाइट करा जाता है पॉलिटिक्स में। रीजन बीइंग, एक तो हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम फॉलो करते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, दूसरी Yes, ma'am. चीज हमारे कंट्री में अगर आप देखो तो कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है किसी भी एक सिंगल कास्ट में। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हैं, है ना? आते हैं नहीं आते हैं? ऐसा तो है Yes, नहीं ma'am. Yes, ma'am. सारे वोट SC ST को चले जाते हैं। भाई जितने लोग होंगे उतने ही तो वोट होंगे, उससे ज्यादा तो वोट नहीं हो पाएगा। No, ma'am. ठीक है, देन नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी एक वोटर सारे एक ही कास्ट के या एक ही कम्युनिटी के वोट्स नहीं मिलते हैं उसको। हो सकता है विद इन द कास्ट ग्रुप भी जो है ओपिनियन में वेरिएशंस हो, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट्स में जो है कहीं से कहीं भी कोई बायसनेस नहीं होती है। हम जिसको चाहेंगे हम उसको वोट देंगे। देयर इज नो बाउंडेशन कि हम किसी एक पर्टिकुलर लीडर को ही वोट दें या किसी पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर को ही वोट दें। अगर हमें लगता है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है कंटेस्ट कर रहा है और वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, हो सकता है उसके आने से चीजें और बेहतर हो, तो हम उसको भी वोट देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं या एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं हम उन्हीं को जो है वोट करें। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स जो कास्ट है उसको पॉलिटिक्स में हम कंप्लीटली कैसे इन्वॉल्व करते हैं? बाय एंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर दूसरा, Yes, ma'am. third thing that we have is that every party has a candidate from different caste groups। अगर आप देखो हर कास्ट ग्रुप के कैंडिडेट्स हर पार्टी में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर पार्टी में सिर्फ एक ही कास्ट ग्रुप के जो है कैंडिडेट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, हर कास्ट ग्रुप के लोग जो है मिलते हैं आपको हर पॉलिटिकल पार्टी में। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This point I have already told you that it is not compulsory, it is not mandatory for a voter to vote for a particular candidate only। या अगर Yes, ma'am. मैं जो है लोअर कास्ट को बिलोंग करती हूँ, मेरे को रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो मैं अपने ही किसी कैंडिडेट को वोट करूंगी। जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है मेरे को लगता है कि भाई मेरी कम्युनिटी का जो कैंडिडेट है वो इतना डिजर्विंग नहीं है, दूसरे कम्युनिटी का ज्यादा डिजर्विंग है, या दूसरा कैंडिडेट जो है वो ज्यादा बेटर है हमारे वाले कैंडिडेट से। तो मेरे पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है दैट आई हैव टू गिव वोट टू माय कास्ट ग्रुप पर्सन ओनली और कैंडिडेट ओनली, राइट? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद जब हम रूलिंग पार्टी की बात करते हैं तो जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स में हमेशा वेरिएशन होता है। अगर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव पिछले इलेक्शंस में जीता था भारी बहुमत से या काफी मेजॉरिटी ऑफ वोट से, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगले इलेक्शंस में भी वो उतने ही वोटों से जीते। हो सकता है उसने सारा 5 साल के टेन्योर में कोई ऐसा काम नहीं करा कि लोगों को वो रिझा सके और लोगों को वो सेटिस्फाई कर सके, तो हो सकता है अगले इलेक्शंस में उसको कोई वोट ही ना करे। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार जो वोट दिए उससे डबल परसेंटेज में उनको वोट्स मिल जाए। आई होप आई एम क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, कास्ट के ma'am. बेसिस पे भी पॉलिटिक्स होती है। बिल्कुल होती है बेटा, बिल्कुल होती है। आप देखो इलेक्शन के टाइम भी लोगों को ये दलित और ये सब लोग याद आते हैं, उससे पहले कोई नहीं याद आता है, उससे पहले कोई नहीं जाता है इनके पास। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम में दे वर शोइंग
शायद नेशनल ज्योग्राफिक पे आ रहा था, जाने किसी पे तो आ रहा था चैनल पे, हमें याद नहीं आ रहा है किस चैनल पे आ रहा था। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जो है ये जो पॉलिटिक्स में भी ये जो इस तरीके के जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ये कहते हैं कि भाई हम जो दलितों की बस्ती में गए, हम कहीं और गए, हमने वहां उनके साथ बैठ के खाना खाया, तो ये आधा सच होता है। इसका पूरा सच इज नॉट शोन टू अस, इज नॉट टोल्ड टू अस। ठीक है, उनको सिर्फ ये Yes, कह ma'am. दिया जाता है कि भाई आपको जैसा पूछा जाए आप उसको जो है पॉजिटिव वे में बताएंगे। जरूरी नहीं है कि आप वही चीज बताओ जो आपने देखी है। हो सकता है वो लोग देखते कुछ है और उनसे कहा कुछ और जाता है बोलने के लिए। तो इट इज जस्ट बिकॉज वो इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो पॉलिटिक्स में कास्ट को बहुत खराब तरीके से भी लिया जाता है और बहुत पॉजिटिव तरीके से भी लिया जाता है। पॉजिटिव तरीके से लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि सबको पूरे पूरे हमारे पॉलिटिशियंस को मालूम है कि हमारे कंट्री में हम यूनिवर्सल एनएल फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं, हम इक्वालिटी को फॉलो करते हैं। और ये जो इक्वालिटी है, उस इक्वालिटी में हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि जितने भी हमारे कंट्री में जितने भी कास्ट ग्रुप्स हैं या जो कम्युनिटीज हैं, उन सब में जो 18 या 18 साल से ऊपर है, उन सबको वोट करने का अधिकार है। तो वो किसी को भी इलेक्शंस के टाइम पे पर्टिकुलरली नाराज करना नहीं मानते। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ जी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है, ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स। Yes, ma'am. चलिए, अब पॉलिटिक्स कास्ट का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स एंड कास्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटीज को पॉलिटिकल अरीना में जो है जबरदस्ती लेकर आते हैं, ताकि वो लोगों को अपने इस एक्ट से जो है इम्प्रेस कर सके या इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, दूसरा, जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं, वो हो सकता है कोई दूसरा कास्ट ग्रुप या सब कास्ट ग्रुप को ज्वाइन करके एक बड़ा ग्रुप बना ले। मतलब भाई जैसे एक पर्टिकुलर कास्ट में बहुत सारे सब कास्ट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई ऊपर के जो 6 या 7 सब कास्ट ग्रुप्स हैं, वो सब एक साथ मिल जाए और एक बड़ा ग्रुप बना ले, नीचे के 3 ही मिल पाए। और ये भी हो सकता है कि ऊपर के 3 मिल जाए और बाकी नीचे के सारे मिल जाएं। तो पॉलिटिक्स में कोई ऐसा मतलब कोई ईमान धर्म नहीं होता है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा जो है मतलब आई शुड नॉट से दिस पब्लिकली, ऐसा कहना अच्छी बात नहीं होती है। बट पॉलिटिक्स में एज सच अगर आप देखो, कोई भी प्रिंसिपल या किसी फिलोसफी को पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया जाता है। जहां पे भी उनको अपना बेनिफिट नजर आता है, उस बेनिफिट को जो है वहां पर हमेशा देखा जाता है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. चलिए, okay, then coming to the next point, that is various caste groups that we have, they may join a coalition and may give way to dialogue or negotiation। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा coalition parties बन के आती हैं। Yes, ma'am. पता है ना coalition क्या होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kavyansh, what is coalition? Ma'am, when two parties join to form a Then single like ma'am in party. Hindi ma'am Gathbandhan. Single. Yes, ma'am. डिफाइन करो उस गठबंधन को, डिफाइन करो। Like ma'am Ma'am, when two NDA is different there parties ma'am. join to form a one party. When Yes, more ma'am, than ma'am, different type, ma'am, two or more government collide to form one government. But when more than 2 political parties come together to form the government, then it is coalition Yes, government। Yes, ma'am. ठीक है, इतना क्लियर? Yes, ma'am. अब कई बार क्या होता है कि कास्ट ग्रुप्स को अपने उसमें गठबंधन कोएलिशन में जो है लाया जाता है और उनकी शर्तों पे काम किया जाता है। तो ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से भी पॉलिटिक्स को कास्ट में जो कास्ट को जो है पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. अब अगर आप देखो तो आज की डेट में कुछ नए कास्ट ग्रुप्स भी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, बैकवर्ड हो गए और फॉरवर्ड ग्रुप्स हो गए, है ना। बैकवर्ड ग्रुप्स में वो लोग आ जाते हैं जो कि जिनका कि किसी चीज पे एसेस नहीं है, और फॉरवर्ड ग्रुप्स में वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत सुविधाएं तो हैं, बट उनको किस तरह उनको इनकैश करने के जरिए नहीं है उनके पास। ठीक है, Yes, ma'am. इतना सबको yes, समझ ma'am.
सकते? Yes. Yes, ma'am. कोई चीज जो आपको बिल्कुल समझ में ना आई हो? कास्ट इनइक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन? No, ma'am. I'm आ गया. No, ma'am. एकदम क्लियर? Yes, ma'am. Crystal clear. Crystal clear. That's very good. So now let us have the book and do the reading, right? Ma'am, which refresher book is good for my SST, ma'am? बेटा आप लोगों को तो मुझे लग रहा है शायद ऑल इन वन दिया गया है ना? Okay, ma'am. मैम बुक को तो मैम बुक की तो मैम दिया तो कुछ नहीं गया मैम बुक की लिस्ट में क्या चीज? मैं एनसीईआरटी लेने को बोला था मैम अभी तो। हाँ तो एनसीईआरटी सबसे बढ़िया है, सिर्फ बुक पे जो है स्टिक रहो। चलिए, कैन यू रीड? सॉरी, कैन यू सी द स्क्रीन क्लियर? चलो यस मैम। काव्यांश पढ़ो बेटा। Okay, ma'am. Ma'am, 1 minute. हाँ, Ma'am, overview. हाँ ओवरव्यू। In the previous chapter, we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy. Political expression of social difference is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. In this chapter, we apply these ideas to practice of democracy in India. We look at three kinds of social difference that can take the form of social division and inequalities. These are social differences based on gender, religion, and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it gets expressed in politics. We also ask whether the different expression based on the difference and healthy are or otherwise in the democracy. नाउ रीड दिस। Gender हाँ जी, gender and politics. Let us begin with read बेटा। काव्यांश, काव्यांश। Ma'am, can I read? Yes, Abhyuday, read. Ma'am, can I read? हाँ बेटा पढ़ो। Ma'am, from where? Let us begin with gender division. Okay, ma'am. Let us begin with gender division. This is the form of hierarchical social division. Hierarchical social division. Hierarchical social division seen everything, but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood. Ma'am, चला गया. हाँ, अब ठीक है।
Sorry, ma'am, my meeting was disconnected. Logic. The gender division tends with the understood, natural, and unchargeable. However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. Next. Now, housework and मैम इससे पहले भी कुछ होगा मैम. दिख ही नहीं रहा है. थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए. एक मिनट रुको. हाँ, अब पढ़ो. Public and private division. Public and private division. Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bargaining up children. Nee, bringing up children, and this is reflected in a sexual division of labor in most families. Women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, strolling, looking after children, etc. And men do all work outside the home. Carry on, carry on. The home. It is not that men cannot do housework. They simply think that it is for women to attend of these things. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors or cooks in hotels and are men. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In urban areas, class women work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. ठीक है, carry on. The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, in minimal in the most societies. Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote, and contest for public offices. Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different parts of world organized and agitated. Ma'am, what is agitated? Agitate करना, demonstrate करना. Agitated for equal rights. There were agitations in different countries for the extension of voting right to women. These agitations demand enhancing the political and legal status of women and improving There. पढ़ो पढ़ो. Carry on. their educational and career opportunities. More radical women's movements aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called, ma'am, what is it written? Feminist movement. Feminist movements, political expression of gender division and political mobilization on the Mobilization on the question helped to improve women's role in public life. We now find women working as scientists, doctor, engineer, lawyer, manager, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. In some parts of the world, for example, in See, these pictures show you what? yes, to the steps that women are working at home. Yes. Women has a role everywhere. Read. In proportions of girl students go for higher studies. When we look the school result, girl perform as well as boy, if not better in some places, but they drop our because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equality on their sons and daughters. Second point, now wonder the proportion of women among the highly